میں نے پوچھا واپس آؤگی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کبھی سوچتا کہ مجھے جینیفر پر اعتبار کرنا چاہیے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میں کسی بڑی سازش کا شکار بن گیا ہوں۔ کافی دیر تک میں شش و پنج میں مبتلا رہا اور آخر میں خود کو جینیفر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جینیفر کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس 2 آدمی نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور جینیفر بھی اس بارے کوئی ہدایات نہیں کر کے گئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور آتے ساتھ مجھ سے نام پوچھا، اسٹیفن۔ میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا میں نے اگل دیا۔ اس کا اگلا سوال شناختی کارڈ کے متعلق تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے خاموش پا کر ایک نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال کر مجھے حکم دیا، ہاتھ اوپر۔ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میرے دماغ میں سوچ ابری کہ بس ابھی پھنس گیا ہوں۔ اسی وقت جینیفر 2 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوئی جنہوں نے 3 آدمیوں کو ہتھکڑی لگا کر پکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن، اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے، گرفتار کر لو۔ جینیفر کی آنکھوں میں مجھے شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میں ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکا تھا۔ مگر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا۔ ہیڈ کوارٹر جا کر بات کرنا۔ میری بات سنے بغیر اس نے سختی سے میرے بازو پشت کی جانب موڑتے ہوئے ہتھکڑی لگا دی۔ جینیفر پیچھے مڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ہم چاروں کو دھکیلتے ہوئے وہ باہر لائے اور کالے شیشوں والی ایک ویگن میں بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر کالے رنگ کے نقاب چڑھائے اور اس کا دروازہ باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا۔ میں جینیفر پر اعتبار کر کے بری طرح پھنس گیا تھا۔ ویگن سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں جاتے ہی جب میک اپ اترتا اور میرا اصل چہرہ سامنے آتا تو مجھے الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جو پاکستان اور مسلمانوں کی بدنامی ہونی تھی وہ ایک علیحدہ پریشانی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساری بات بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے بتا دوں گا۔ اگر میں نے فوراً ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً بچ جاتا۔ ایک حسرت بھری سوچ میرے ذہن میں ابھری اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کئی بار جینیفر کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں نے تیسری مرتبہ اسے دھوکہ کھایا تھا، اور اس کے بعد مزید یوں بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ کیا میرے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا؟ میں حقیقت بتا کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ کرنل اسکاٹ پارٹی مجھے حقیقت بتانے کے قابل ہی نہ چھوڑتے اور اس سے پہلے ہی میرا اگلے جہاں کا ٹکٹ کٹا دیتے۔ ویگن ایک جھٹکے سے رکی اور میں اذیت بھری سوچوں سے حال کی جانب پلٹا۔ اسٹیفن، باہر آؤ۔ میں نے گرفتار ہوتے وقت جو نقلی نام بتایا تھا اسی سے مجھے پکارا گیا۔ میں جھکے جھکے اٹھا۔ دروازے کے قریب کھڑے کسی آدمی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی، اور میرے نیچے اترتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی، لیکن اس نے میرے چہرے سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ از خود میں نے بھی کپڑا اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے کانوں میں ویگن کے آگے بڑھنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے میرے سر سے نقاب کھینچا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو پہلا منظر ابھرا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت اور دلکش جینیفر کا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نقاب اس نے دور پھینک دیا تھا۔ کالی ویگن دور جا رہی تھی۔ ہم اس وقت ایک ویران سے کوچے میں موجود تھے۔ یہ کیا؟ میں ہکلایا۔ وہ شوخی سے بولی، کہا تھا نا اپنی جینی پر اعتبار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے سے ماسک نوچ کر پرے پھینکا اور وارفتگی سے لپٹ گئی۔ جینی، کیا مذاق ہے؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہکا لگایا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ جناب، یہ پاکستان نہیں، نیو یارک ہے۔ پھر بھی میں نے نرمی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نا کیا معاملہ ہے؟ چلو ہوٹل چل کر بتاؤں گی۔ وہ میری حرکت کا برا منائے بغیر بولی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی معیت میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مصروف شاہراہ پر نکل آئے تھے۔ چونکہ وہاں سے نومڈ ہوٹل نزدیک ہی تھا، اس لیے میں نے ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ پرتکلف کھانے کا آرڈر دے کر واش روم کا رخ کرتے ہوئے شوق لہجے میں بولی، زی نہانا ہے تو آ جاؤ۔ شکریہ، میں بعد میں نہا لوں گا، میں نے منہ بنا کر کہا، اور وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے، شاید یہ برین ویلز کو کامیابی سے ٹھکانے لگانے کی خوشی تھی۔ اس کے واش روم سے نکلتے ہی میں اندر جانے لگا۔ وہ میرے قریب رک کر بولی، اندر نیا سوٹ لٹکا ہوا ہے، نہا کر پہن لینا، اور میں سر ہلا کر اندر گھس گیا۔ میرے نہا کر باہر آنے تک کھانا آ چکا تھا، میری وجہ سے اسے بھی حلال کھانا پڑ رہا تھا۔ اب پوچھو تمہارے ذہن میں کون سے سوالات آ رہے ہیں؟ وہ چھری کانٹا سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہم نے منصوبے کے مطابق کیوں کارروائی نہیں کی؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے میری جان کہ جب تم نیچے پہنچ کر ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے اس وقت تک درجنوں سرکاری اہلکاروں نے وہاں پر پہنچ کر ہوٹل سے کسی کے بھی باہر جانے کو ناممکن بنا دینا تھا، اور جو لوگ بھی باہر جانے کی کوشش میں تھے وہ تمام اس وقت تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا منصوبہ بناتے وقت یہ پہلو تم لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا؟ نہیں، کرنل اسکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ
इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने हुक्म दे दिया था कि अगर तुम कामयाबी से फरार होने में कामयाब नहीं हो सके तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। मैंने बज़ाहिर तो हामी भर ली, लेकिन इसके साथ तुम्हें बचाने का तहिया भी कर लिया था। मैंने खुद CIA के एहलकार की सूरत में होटल की तलाशी लेना थी और इसी सूरत में मैं खुद को शक के नरके में आने से बचा सकती थी। यह बात कर्नल स्कॉट वगैरह ने पहले से तय कर दी थी कि लिजा को मेरा हमशक्ल बनाकर होटल में दाखिल किया जाएगा और होटल में दाखिल होकर वो अपने असल रूप में आ जाती और मैं उसकी जगह ले लेती। हम दोनों ने चूंकि लिफ्ट से निकलते ही अलग-अलग हो जाना था, इसलिए आगे तुम्हारी अपनी सवाबदीद थी, मगर मैं जानती थी कि तुम्हारा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली कर ली और देख लो तुम्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल कर यहाँ ले आई। मतलब कर्नल स्कॉट और जूली ने मुझे धोखे में रखा। वो साफ गोई से बोली, सबसे पहले हर आदमी की अपनी तरजीहात होती हैं। तुम्हें कल रात या आज सुबह को भी ये सब कुछ बता सकती थी। अगर फायर से पहले बताती तो शायद तुम सही तरीके से फायर न कर पाते और इसके बाद वक्त ही नहीं था बताने का। अलबत्ता इसके मुतल्लिक सुबह नाश्ते पर मैंने इशारा कर दिया था। तुमने मेरे लिए इतनी तकोदू क्यों की? मेरी आंखों में झांकते हुए अफसुर्दा लहजे में बोली, क्या तुम नहीं जानते? वैसे सच कहूँ तो मैं तुम पर एतबार करके बहुत पछता रहा था। जानती हूँ तुमने कभी मुझे एतबार के काबिल समझा ही नहीं। मेरी जगह पर तुम खुद को रख कर सोचो तो तुम्हें एहसास हो। मैं कई बार सफाई दे चुकी हूँ कि मेरा तुम्हारी जानब माइल होना किसी मकसद के मरहून मिन्नत नहीं था, बल्कि तुम्हारी निशानाबाजी की सलाहियत सामने आने के बाद भी किसी के दिमाग में यह मंसूबा नहीं आया था। अलबत्ता जिस वक्त ब्रेन वेल्स का ये सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम करना जोली रोजवेलट के इल्म में आया, उस वक्त किसी ऐसे स्नाइपर की जरूरत महसूस हुई और उसने कर्नल स्कॉट तक ये बात पहुंचाई। कर्नल स्कॉट चूंकि मुझे बतौर एक अच्छे स्नाइपर के पहचानता है, इसलिए उसने मुझसे मशवरा लिया, लेकिन मैंने 1500 मीटर से ज्यादा फासले पर निशाना लगाने से मुआजरत जाहिर की। तब उसने मेजर जेम्स मैथोनी से बात की और मेजर जेम्स मैथोनी के वास्ते से तुम्हारा नाम उसके कानों तक पहुंचा। कर्नल स्कॉट ने तुम्हें राजी करने की जिम्मेदारी फौरन मुझे सौंप दी और मेरी पसंदीदगी फर्ज की लपेट में आ गई। मैं तुम्हें असल बात बताने की हालत में नहीं थी। इसी तरह मेरे सीनियर्स भी अभी तक मेरे इन जज्बात से वाकिफ नहीं हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए पिन्हा है। अलबत्ता मेरी आज की कार्रवाई के बाद उन्हें असल बात की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। शायद थोड़ी बहुत बाज पुरस भी हो, मगर मिशन खुश असलूबी से पूरा होने की खुशी में बात जुबानी कलामी सरजंश से आगे नहीं बढ़ेगी। 1500 मीटर से ब्रेन वेल्स को निशाना बनाने में क्या कबाहत थी? 1500 मीटर के दायरे में आने वाली इमारतों पर अगर सरकारी एहलकार तैनात न किए जाते तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स शक की जद में आ जाता। अब ये होटल तो करीबन 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ सरकारी अमला तैनात न करने का मजबूत जवाब तो मौजूद है ना। खाना खाने के बाद हमने चाय भी वहीं मंगवा कर पी ली थी। इस दौरान जेनिफर ने टीवी ऑन कर दिया था। ब्रेन वेल्स के कत्ल की खबर अब तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रही थी और उसके कत्ल के पीछे असल मुहर्रिक ढूंढने के लिए मुख्तलिफ क़ियासराइयां की जा रही थी। मुस्तकबिल करीब में होने वाले सदारती इंतखाबात को भी इस कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा था। तहकीकात करने वालों की रसाई इस वक्त तक हैवी स्नाइपर्स तक नहीं हो पाई थी। अलबत्ता हमारे फायर करने की जगह तलाशने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ब्रेन वेल्स के आधे उड़े हुए चेहरे की तस्वीर भी स्क्रीन के एक कोने में नजर आ रही थी। वो चूंकि दस्तखत करते वक्त कई कैमरों की जद में था, इसलिए उसे गोली लगने की फिल्म बहुत साफ बनी थी। उसका कर्नल जोली रोजवेलट की तरफ फाइल का बढ़ाना और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना, उसी लम्हे उसके चेहरे के टुकड़ों का हवा में उड़ना और उसका उछल कर पीछे गिर कर तड़पने लग जाना, ये 2-3 सेकंड के अंदर बर्पा हुआ था। वैसे क्या तुम्हें भी असल वजह मालूम नहीं है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ब्रेन वेल्स का वाज़े झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ था और शायद उसकी जिंदगी मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा सदर बनने में रुकावट बनती। उसने गोल मोल अंदाज में असल बात उगल दी। 20 जनवरी 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुद्दत सदारत पूरी हो रही थी। मैंने उसे मजीद खरीदने से एहतजाज बरता ताकि इस तरह की ज्यादा मालूमात कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। चाय का कप खाली करके उसने महानी के लहजे में कहा, अगर चाहो तो हम रात यहीं गुजार सकते हैं। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया जी। वैसे बाकी स्नाइपर्स भी आज कैंप में तो नहीं होंगे? क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि कल हमारे कैंप से निकलते बाकी तमाम को भी 1-2 दिन बाहर गुजारने की इजाज़त मिल गई थी। इस ज़मन में तमाम को $1,000 बतौर जेब खर्च के तौर पर दिया जाना था ताकि वो न्यूयॉर्क या किसी दूसरे करीबी शहर की सैर कर सकें। और ये मेहरबानी किस लिए? ताकि कर्नल स्कॉट के पास तुम्हारे कैंप से बाहर जाने का मजबूत जवाब मौजूद हो। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में वो कह सकता था कि कैंप से सिर्फ तुम नहीं, तमाम स्नाइपर्स बाहर हैं। वैसे बहुत मकार कौम है तुम्हारी, बहुत दूर तक सोचते हो, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, अब तुम्हें असल बात बता दी तो तुम तंज करने लगे। और प्लीज़ कर्नल स्कॉट या मैडम जोली के सामने ऐसा कुछ न कह देना। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी हकीकत तुम पर जाहिर हो। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अब तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत पड़े। मैंने मानी के लहजे में पूछा, पहले ऐसी कौन सी बात थी?
نہ نہیں، میرا مطلب ہے اب تو تم آزاد ہونا، تم نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیپٹن جینیفر، میں جانتا ہوں کہ تم نے پہلے پہل جو مجھے اس قسم کی آفر کی تھی، اس کے پس پردہ مجھے بلیک میل کرنے کا ارادہ کار فرما تھا۔ ویسے شادی وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں سوچا؟ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ فی الحال تو بالکل نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کے دن ہے، ابھی سے یہ بیڑیاں پہن لوں؟ تمہارے لیے زندگی انجوائے کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ جنسی بہرہ روی کا شکار ہو جائے؟ حالانکہ شادی بھی اسی انجوائمنٹ کا نام ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس صورت میں صرف ایک مرد میسر ہوتا ہے اور وہ شغل باعث گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جی کیا میں تمہیں اتنی گھٹیا اور بہرہرو لگتی ہوں؟ تمہیں آفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سہل الحصول ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سنائپر کورس پر آنے والے کم از کم خوبصورت مردوں کے ساتھ میں تعلق رکھ چکی ہوتی، مگر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایک مرد ایسا لے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے جینیفر کو حاصل کر لیا ہے۔ پھر انجوائمنٹ اور شادی نہ کرنے سے کیا مراد؟ شادی کے بعد عورت واقعی بن جاتی ہے، آزادی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ایسا صرف ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جی ایک سچ بول دوں؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ ہی تو سننا چاہتا ہوں۔ میں شروع دن سے جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھو گے، اس لیے جتنی بار بھی میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ صرف ڈرامے اور دکھاوے کے طور پر تھی۔ اور اس دن جو فارم ہاؤس پر لے جا کر پوری کوشش کی تھی وہ کیا تھا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر تم راضی ہو جاتے تو تمہیں کمرے میں لے جاتی، اندھیرا کر کے واش روم میں جاتی اور وہاں ایک اور لڑکی تیار بیٹھی تھی تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ صحیح کہا۔ اس نے پوچھا خفا ہو گئے؟ نہیں، بس عورت ذات کی مکاری کے بارے سوچ رہا ہوں۔ عورت کو مکاری پر مجبور کرنے والی ذات بھی تو مرد کی ہے نا، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک کام پر کسی مرد کو راضی کرنے کے لیے دوسرا مرد عورت کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اپنی وہ صنف کی فطرت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی معصوم عورت کو پامال کرنے کے لیے ایک مرد کتنا گر سکتا ہے۔ اگر مرد کی فطرت میں عورت کے حصول کی اتنی تمنا نہ ہوتی تو کسی عورت کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور نہ عورت کو اپنی ذات پر جبر کر کے کسی ناپسندیدہ شخص کو اپنی چاہت کا یقین دلانا پڑتا۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری عورتیں بھی ایک سی نہیں ہوتی، اور معاف کرنا ایک دو مردوں کا عمل پوری برادری کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ یہ جاسوسی کی دنیا کا قانون ہے کہ مرد کو بلیک میل کرنے کے لیے سب سے آسان، اہم اور تیر بہدف طریقہ عورت کا استعمال ہے، اور ایسا مرد کی ہوس پرست طبیعت کی وجہ سے ہے۔ مرد چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا، اس کی فطرت ایک سی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی سچی اور کھری باتوں کا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی جواب نہیں سوچا تھا۔ مان لیا مگر تم نے عورت ذات کو مکار کہا تو جواباً تمہیں آئینہ دکھانا پڑا، ورنہ تم سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ چلو اس بہانے مجھے اپنی حیثیت کا تو پتہ چل گیا کہ تم میری جانب کیوں مائل ہوئی تھی۔ اس بار اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد دوبارہ زبان کھولی، اور جہاں تک گلے کا تعلق ہے تو وہ مجھے تم سے ہونا چاہیے۔ اگر حقیقت کھنگالی جائے تو پہلے دن تم جانے کیوں میرے پاس آئی تھی؟ یقیناً اس وجہ سے کہ ہمارا ملک تمہارے ہاں کچھ زیادہ ہی بدنام ہے، اور پھر مجھ سے ملتے وقت تم میری یادداشت سے متاثر ہوئی اور میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ دوستی شاید برقرار رہتی اگر میں روس اور چائنا کا ذکر کر کے تمہارے پیارے اور عظیم ملک امریکہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ اس کے بعد تمہارے دل میں دبی نفرت ابھر کر سامنے آئی، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے تم انڈین سنائپرز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی، مجھے تحقیر اور حقارت کا نشانہ بنانے لگی، اور پھر بدقسمتی سے میری نشانہ بازی کی صلاحیت سامنے آئی اور تمہیں حکم ملا کہ اس مرغے کو پھانسنا ہے۔ بس تمہیں مجھ سے محبت کا ڈرامہ کھیلنا پڑا۔ سب سے پہلے تم نے مجھے اپنے جسم کی رشوت پیش کی، ناکام ہونے پر دولت کی آفر کی، اور جب اس طرح بھی دال نہ گلی تو میرے اعتبار پر ڈاکہ ڈالا۔ دوستی اور محبت کی آڑ میں میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب کہو گلہ میرا بنتا ہے یا تمہارا؟ تم مجھے جسمانی تعلقات کی آفر کرتی، دولت کی رشوت دیتی یا کچھ بھی کرتی، مگر محبت اور دوستی کا ڈرامہ تمہیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ اور سچ کہوں تو آج تم مجھے ہوٹل سے بچا کر لے آئی ہو، ایسا کرنل اسکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ وغیرہ کی منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تم کہہ رہی تھی کہ میں کرنل اسکاٹ وغیرہ سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ انہوں نے میرے لیے کوئی اور آرڈر دیا تھا۔ کچھ پینا پسند کرو گے؟ پیٹرول پمپ کے ساتھ بنی ایک ٹک شاپ کو دیکھ کر اس نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، ایک ٹھنڈی بوتل یقیناً مجھے غصے پر قابو پانے میں مدد دے گی، اور وہ سر ہلاتی ہوئی دکان میں گھس گئی۔ سردار مجھے اپنے کمرے میں ہی ملا تھا ذیشان بھائی، وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ بستر سے اٹھ کر وہ میرے گلے لگ گیا تھا۔ تمہاری کامیابی کی خبر میں نے ٹی وی پر دیکھ لی تھی، تم کہیں گئے نہیں؟ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، تم میرے لیے خطرے کا سامنا کر رہے تھے، میں کیسے سیر سپاٹے کرتا؟ گویا لیزونا بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، وہ بھی یہی ہے؟ تو یوں کہو نا کہ یہاں پر رنگرلیاں منا رہے تھے۔ نہیں جناب، وہ تمہاری جینیفر کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہے۔ وہ اور میں گپیں ہانکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی گزری زندگی کی کہانیاں سناتے ہیں، اور بس یوں ہی جینیفر غریب پر الزام تو نہ لگایا کرو نا یار۔
अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तुम मुझे तफसीलात बताओ ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाना पड़ेगी, ठीक है। वो बिस्तर को छोड़कर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गया और मैं उसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगा। चाय पीने तक मैं सारी तफसीलात उसके गोश गुजार कर चुका था। उसके बाद हम सो गए। अगली सुबह 8 बजे के करीब ही कर्नल स्कॉट का बुलावा आ गया था। वहाँ कर्नल जोली रोजवेल्ट भी उसके हमरा मौजूद थी। वेल्टन बॉय। मेरे अंदर दाखिल होते ही कर्नल जोली रोजवेल्ट मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़कर उसने मुझे गले से लगाते हुए मेरे दोनों गाल चूम लिए थे। कर्नल स्कॉट ने भी मुझे छाती से लगाकर मेरी पीठ थपकी थी। बैठो। वारफ्तगी से खुश आमदीद कहकर कर्नल स्कॉट ने मुझे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया सर। मैंने कुर्सी संभाल ली। बहुत उम्दा और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तुम दोनों ने। खासकर तुम्हारे काम की तारीफ तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बैनुस्तूर उसका वादा याद दिलाया। वो पहले से बेहतर है और उसे ये भी पता चल गया है कि वो रेगनवाज की गलती की वजह से जख्मी हुआ है। आज सरकारी तौर पर भी इंडियन आर्मी को मुआवजत का लेटर भेज दिया गया है। श्रीकांत को भी इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सारी जिंदगी रेगनवाज को दुआएं देता रहेगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, मैंने मुतशुक्राना अंदाज में कहा। कर्नल स्कॉट ने कहा कि कल तुम्हारे कोर्स की इख्तितामी तकरीब भी है। अव्वल पोजीशन हासिल करने पर भी पेशगी मुबारकबाद। मैंने पूछा ये पोजीशन मुझे हालिया कारकर्दगी पर दी जा रही है या हकीकत में मेरी यही पोजीशन बन रही है? तुमने मजमूई तौर पर 98% नंबर हासिल किए हैं और सेकंड वाले के 80% नंबर हैं। फिर ठीक है। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। कुछ और दरकार हो तो कहो। कर्नल जोली रोजवेल्ट ने खुश दिली से ऑफर की। शुक्रिया मैडम। मैंने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर तुम्हारे निशाने पर एतमाद किया और शुक्रिया कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरे। जेनिफर ने तुम्हारे निशाने की जितनी भी तारीफ की थी कुछ कम ही थी। अब मुझे तुम्हारे किसी भी काम आकर खुशी होगी। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं यकीनन इजहार करने में तामिल नहीं करूंगा। ठीक है। इसके बाद शायद तुमसे मुलाकात ना हो। इन दोनों ने उठकर मुझे अलविदा किया और मैं वापस कमरे में आ गया। जेनिफर दोपहर के खाने पर और रात के खाने पर भी दिखाई नहीं दी थी। मैंने भी किसी से मालूम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अगले दिन तकसीम इनाम की तकरीब में अलबत्ता वो नजर आ गई थी, बुझी बुझी सी और मुझसे दूर दूर। सरदार ने उसकी वजह भी दरियाफ्त की, मगर मेरे पास उसे मुतमईन करने के लिए कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। मेजर जेम्स ने कोर्स में तमाम स्नाइपर्स की कारकर्दगी पर इजमालन रोशनी डाली और फिर तीसरी पोजीशन वाले स्नाइपर का नाम लिया। वो इसराइली दोशीज़ा एंड्रिया ब्रिटन थी। उसे स्टेज पर बुलाकर मेजर जेम्स ने एक शील्ड और $10,000 का चेक थमा दिया। दूसरी पोजीशन के लिए जेनिफर हेंसले का नाम पुकारा गया। उसे भी एक शील्ड और $20,000 का चेक थमा दिया गया। अव्वल पोजीशन के बारे में मुझे पहले से पता था, मगर मैंने सरदार और लिजोना वगैरह को ये बात नहीं बताई थी। इसलिए जो ही जेम्स मैथोनी ने अव्वल पोजीशन लेने के ज़मन में मेरा नाम लिया और सरदार और लिजोना खुशी से उछल पड़े थे। मेजर जेम्स ने मुझे गले से लगाकर चंद शानदार जुमले मेरी तारीफ में कहे और फिर हुस्ने कारकर्दगी का एक सर्टिफिकेट, $50,000 का चेक और अव्वल पोजीशन की ट्रॉफी मेरे हवाले कर दी। सिवाय राजपाल के तमाम ने मेरे लिए दिल खोल कर तालियां बजाई थीं। $50,000 बहुत बड़ी रकम थी। इतनी रकम कर्नल स्कॉट ने मुझे ब्रेन वेल्स के कत्ल के सिलसिले में ऑफर की थी। मुझे लग रहा था कि इतनी खतीर रकम मुझे ब्रेन वेल्स को ठिकाने लगाने के सिले में ही मिली है। इख्तितामी कलमात कहकर मेजर जेम्स ने हमारे अगले दिन की फ्लाइट्स का ऐलान किया और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। इनाम तकरीब से वापसी पर मैंने चेक मेजर जेम्स के हवाले करके नकद रकम मंगवा ली थी। रात को पुरतकल्लफ डिनर और उसके बाद मौसीकी की महफिल का इनिकाद हुआ। पीने पिलाने का भी खूब एहतमाम किया गया था। इंग्लिश की बेहंगम मौसीकी और बेहुदा शायरी से मुझे कोई लगाव नहीं था। गो मेरी इस बात से इख्तलाफ करने वाले कसीर लोग मौजूद थे, मगर ये वो लोग हैं जो इंग्लिश की अच्छी शायरी के दिलदादा हैं। आजकल के पाक म्यूजिक की वकालत यकीनन वो भी नहीं करेंगे और बेहुदा शायरी से मेरी मुराद भी पाप म्यूजिक की लिचर शायरी ही से है। मुझे कमरे में आए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि सरदार लिजोना के हमरा वहाँ आन पहुंचा। जिशान भाई, आज तो हम दोनों रात भर गपशप करेंगे। तो लिजोना के कमरे में बैठ जाते। जेनिफर तो यूं भी मौसीकी से बहरामंद हो रही होगी। वो तो डिनर के बाद ही अपने कमरे में चली गई थी। लिजोना ने मुतबस्सम होकर कहा, चलो ठीक है, मगर इस शर्त पर कि लिजोना बहन अपने हाथों से बेहतरीन सी काफी बनाकर पिलाएगी। अभी लें भाई। वो उठकर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गई थी। लिजोना काफी वाकई बहुत अच्छी बनाती थी। काफी पीकर मैंने उनके साथ थोड़ी गपशप की और फिर बाहर निकल आया। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। सरदार की शादी के मुतल्लक जानने के बाद भी लिजोना की पसंदीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने सोचा कि आखिरी रात उन्हें तन्हाई की चंद घड़ियां इकट्ठे बिताने दूं, फिर तो जाने वो कभी मिल भी पाते या नहीं। बाहर म्यूजिक का ऊंचा शोर सुनाई दे रहा था
थोड़ी देर लान में टहलने के बाद मेरे कदम गैर इरादी तौर पर जेनिफर के कमरे की तरफ उठ गए। न्यूयॉर्क से वापसी के बाद उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा मलऊन ही कर दूं कि मोहब्बत के दावेदार मुझे अलविदा कहने की जहमत भी गवारा नहीं कर रही थी। दरवाजा हल्के से खटखटा कर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे कालीन पर बैठी थी। बेड की साइड से टेक लगाकर उसने अपनी टांगे कालीन पर फैलाई हुई थी। एक बड़ी सी बोतल उसके सामने धरी थी, जबकि अध भरा गिलास उसके हाथ में था। मुझे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई तासुर उजागर नहीं हुआ था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया था। आज तो अय्याशी हो रही है, मैंने मज़ाहिया लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। उसने एक हल्का सा घूंट भरकर पूछा कैसे आना हुआ। कल वापसी है, सोचा अलविदाई मुलाकात कर लूं। होगी मुलाकात, अब तुम जा सकती हो। उसके लहजे में भरपूर अजनबियत दराई थी। जेनी, क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ तो इतनी चाहत के दावे और कहाँ इतनी बेजारी कि 2 घड़ी की गुफ्तगू भी गवारा नहीं। हाँ, नहीं है गवारा तो। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम कैप्टन जेनिफर हेंसली है, जेनी नहीं। मैंने हंस कर कहा, इतना लंबा नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तुम चीज क्या हो? एक 3rd क्लास पाकी फौजी, एक सिपाही, तुम मेरा पूरा नाम क्यों नहीं ले सकते? स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने का ये मतलब नहीं कि तुम तमीज ही खो दो सीनियर जूनियर की। उसके लहजे से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो इस वक्त नशे में थी। उसकी बदतमीज़ाना गुफ्तगू मुझे अजीब लग रही थी। जेनी, क्या हो गया है? मैं नर्म लहजे में दरियाफ्त किया। मैं कह रही हूँ पूरा नाम लो मेरा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उसने उल्टे हाथ से मेरा गिरबान थाम कर बदतमीजी से पूछा, अच्छा ये गिलास मुझे तो। मैंने उसके हाथ से अध भरा गिलास लेना चाहा। बकवास करने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से दहाड़ी, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी सूरत और तुम्हारी आदत से। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। इधर मेरी तरफ देखो जी। मैंने उसका नाम मजीद मुख्तसर करते हुए उसे कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब किया। छोड़ दो मुझे। उसने एक झटके से अपने कंधे मेरी गिरफ्त से आजाद करवाए। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से गिलास लेकर कमरे के कोने की तरफ उछाल दिया। तुम्हारी ये जुर्रत! उसने मेरा गिरबान थामने में देर नहीं लगाई थी। मैंने उसकी गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर एकदम मेरा गिरबान छोड़कर मुझसे लिपट गई। उसके साथ ही उसकी सिसकियों से कमरे की फिजा गूंज उठी थी। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तसल्ली देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझसे अलहदा होकर वो अपनी आंखें साफ करने लगी। मिलने क्यों नहीं आई? मैं उसका हाथ थाम कर मुस्कुराया। एक धोखेबाज, आवारा और फ्राडी लड़की से ये पूछना ही फजूल है। मैं बेशक तुम्हें धोखेबाज कहता रहा हूँ, मगर दिल से कभी ऐसा नहीं समझा। और माफ करना, जिसको धोखेबाज समझा जाता है उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता। क्या मैंने कभी तुम्हारी किसी बात से इनराब किया है, सिवाय एक बात के, और वो भी बकौल तुम्हारे तुमने दिल से कभी नहीं कहा। झूठ बोल रहे हो। वो सिसकी। झूठ क्यों? अगर ऐसा होता मैं तुम्हें मिलने ही क्यों आता? कल और परसों क्यों नहीं आए? वो शिकवा कुना हुई। मैं शर्मिंदा था क्योंकि रास्ते में तुम्हारी काफी बेइज्जती कर चुका था। मैंने उसका दिल रखने के लिए सरीहन झूठ बोला। जी प्लीज तुम न जाओ। मेरे गले में बाहें डालते हुए वो गिड़गिड़ाई। मैं हंसा। वैसे इतनी शराब नोची अच्छी नहीं होती, बंदा उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ जी। तुम न जाओ, मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड ले दूंगी। कर्नल स्कॉट तुम्हें बहुत अच्छे मुआवजे पर अपने पास रख लेंगे। मैं वादा करती हूँ मेरे जिस्म जहाँ के बस तुम ही मालिक होगे। और मैं तुम्हें यह भी यकीन दिला सकती हूँ कि आज तक मैं किसी मर्द के साथ डेट पर नहीं की। जी, अगर ये मुमकिन होता तो मैं एक लम्हे के लिए भी ना हिचकिचाता, मगर सच तो ये है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे पाँव में न सिर्फ पाक आर्मी की जंजीरें हैं, बल्कि मैं एक बीवी का शौहर और एक बाप का इकलौता सहारा भी हूँ। तुम उन्हें यहाँ से काफ़ी सारी रकम भिजवा सकते हो, और पाक आर्मी के हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। सही कहा, मगर यहाँ मेरी हैसियत क्या होगी? एक उजरती कातल की। कर्नल स्कॉट मुझसे सिवाय अपने दुश्मनों को कत्ल कराने की और क्या काम लेगा? तुम कुछ भी ना करना, मैं हूं ना कमाने के लिए। तुम बस मुझे संभाल समेट कर रखना और मुझे ढेर सारा प्यार देना। हाँ जी, तुम हो भी इस काबिल कि तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया जाए, मगर अफसोस कि तुम मेरी मजबूरियों को समझ नहीं पा रही हो। तुम शायद ये समझ रही हो कि मैं पाकिस्तान आर्मी के खौफ से यहाँ नहीं रुक रहा, तो यकीन मानो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो मेरा ज़मीर मुलामत करेगा कि जिस मुल्क ने मुझे इस मकाम तक आने में मदद दी, मैं किसी काबिल होते ही उससे गद्दारी कर बैठा। फिर मेरे वालिद को फक्त पैसों की नहीं, मेरी देखभाल और मोहब्बत की ज़रूरत है। माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं तुम्हारी ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। हाँ, मेरी ऑफर कबूल करोगे भी कैसे? तुम मुझसे मोहब्बत थोड़ी करते हो। बेवकूफ़ों सी बातें ना करो जैनी। मैंने उसे मोहब्बत से झिड़का। जी मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और आप प्लीज़ कोई और बात करो, तुम हो ही संग दिल। वो मेरे करीब से उठकर इलेक्ट्रिक केतली की जानिब बढ़ गई। काफ़ी जचाए, जो मिल जाए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फिर काफ़ी ठीक रहेगी कहकर उसने केतली का प्लग स्विच में लगा दिया था। काफ़ी पीने के बाद भी मोहब्बत के इजहार के साथ मुझे वहाँ रोकने की कोशिश में मसरूफ रही। मैं रात गए तक उसके साथ बैठा रहा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी, लेकिन वो इससे दुगनी भी हसीन होती तो भी मैं वहाँ नहीं रुक सकता था। पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करना और फिर अपनी बीवी और बाप को लावारिस छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता था।
जिस वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सरदार और लिजोना को मसरूफ गुफ्तगू पाया। मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ आराम कर लिया जाए, मैंने मशवरे के अंदाज में कहा। सही कहा भाई, लिजोना खुशदिली से बोली और फिर हम दोनों से मुसाफा करके वो बाहर निकल गई। जेनिफर सुबह नाश्ते की मेज पर ही मुझे अलविदा कहकर चली गई थी, बकौल उसके कि मुझे जाते हुए नहीं देख सकती थी। लिजोना और उसके साथी की फ्लाइट हमसे बाद थी, वो हमारे पास बैठी गपशप करती रही। हम अपना सामान पैक करके बाहर लान में बैठे धूप से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बातों बातों में जेनिफर का जिक्र हुआ और मुस्कुरा कर पूछने लगी, भाई एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। कल जेनिफर तुम्हें किस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। कल रात को जब मैं अपने कमरे में लौटी तो वो किसी को फोन पर कह रही थी कि वो नहीं मान रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं जान गई कि मौजूद गुफ्तगू तुम्हारी जात है। एक तलखी सी मेरे अंदर घुल गई थी। वो गुज़िश्ता रात भी मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करती रही थी। यकीनन उसके पस पर्दा कर्नल स्कॉट की हदायत होंगी। उसे किराए का एक ऐसा कातिल चाहिए था कि जिसका निशाना बेखता हो और जिसके पकड़ जाने की सूरत में उसे किसी इल्जाम का सामना भी न करना पड़े। मैं आहिस्ता से बोला, वो मुझे रोकने की कोशिश में थी। तो मेरा शक दुरुस्त था। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया, तुमने मुझे ये बात तो नहीं बताई। खामोश बैठा सरदार मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने उसकी बात पर कान धरे बगैर लिजोना को कहा, कौन सा शक? यही कि उस दिन न्यूयॉर्क में जो अहम शख्सियत 2 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, उसके पसे पर्दा तुम्हारा हाथ है। हाँ ये सच है, मैंने एतराफ करने में हर्ज नहीं समझा था। वैसे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं थी। वो संजीदा हो गई थी। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो कि असल बात से नावाकिफ हो। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? जवाबन मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुना दी और तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा। उसकी शाकी नजरों का महवर सरदार की जात थी। सरदार उससे नजरें चुरा कर नीचे देखने लगा। उसे मैंने मना किया था। क्या मुझ पर एतबार नहीं था? वो अफसुर्दा हो गई थी। नहीं, बल्कि तुम पर कोई आंच आती नहीं देख सकते थे। एक गहरा सांस लेते हुए उसने खफगी को दूर झटका। बहरहाल मैं इस सिलसिले में तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती थी। मैंने कहा हाँ, मगर उन्होंने कोई दूसरी सूरत छोड़ी ही नहीं थी। तुमने क्यों मुंह लटकाया है? वो सरदार की पीठ पर मुक्का मारकर हंसी। मैं भला तुमसे खफा हो सकती हूँ? और वो भी अलविदा होते वक्त मैं मुआजरत खा हूँ। सरदार फीकी मुस्कुराहट से बोला। उसी वक्त मान जिन ली भी लिजोना को ढूंढता हुआ वहां आन पहुंचा। हेलो दोस्तों कहकर वो भी वहीं बैठ गया। हमें मजबूरन मौजूद गुफ्तगू बदलना पड़ा और फिर हमारे जाने का वक्त आन पहुंचा। लिजोना हमारी मौजूदगी की परवाह किए बगैर सरदार से लिपट कर रो पड़ी थी। खुद सरदार भी आबदीदा हो गया था। भूल तो नहीं जाओगे? उसने सिसकते हुए पूछा। पता नहीं, कहकर सरदार ने अपना बैग उठाया और हमें ले जाने वाली कार की जानिब बढ़ गया। अब चिनारे बेगम की मोहब्बत में धड़कने वाले दिल में किसी और का नाम भी शामिल हो चुका था। मैंने लिजोना और मालिनी जी से मुसाफा किया और सरदार के पीछे चल पड़ा। कार में बैठकर उसने सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। मैं उसकी कैफियत समझ सकता था। मौत से नजरें मिलाने वाला सच्चा और खरा पठान इस वक्त लिजोना को देखने का हौसला अपने अंदर मफकूद पा रहा था। कार चल पड़ी। लिजोना हाथ लहराती रही। मैंने भी कार से हाथ निकाल कर उन्हें खुदा हाफिज कहा, मगर सरदार आंखें बंद किए बैठा रहा। हम पाकिस्तान में सिपहर ढले उतरे थे। अब क्या करें? सरदार ने पूछा, यूनिट रिपोर्ट करें या घर का चक्कर लगा लें? मैंने जवाबन कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमारे घर इतनी दूर नहीं है। तुमने मर्दान जाना हो और मैंने तलागंग, तो क्यों ना आज की रात घर गुजार लें। सुबह 11 बजे तक रावलपिंडी पहुंच जाना, यूनिट चले जाएंगे और यूं भी हमारे अगले चंद दिन इंटरव्यू वगैरह ही में गुजरेंगे। शायद हफ्ता एक मजीद छुट्टी मिलने में भी लग जाए। ठीक है। सरदार खुशी से तैयार हो गया। हमने अगले दिन 12 बजे पीर बधाई बस अड्डे में मिलने का प्रोग्राम तय करके अपनी अपनी राह चल पड़े। मेरे पास काफी बड़ी रकम मौजूद थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी कराकर सदर बाजार पहुंचा और माहीन और अबू जान के लिए तोहफे खरीदने लगा। शाम की अजान मुझे वहीं हो गई थी। दोबारा टैक्सी कराकर मैं पीर बधाई मोड़ पहुंचा और तलागंग जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात के 9 बज रहे थे जब मैं तलागंग अड्डे पर उतरा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए वीरानी का आलम नजर आया। वहां से मेरे गांव का फासला 5-6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। मैं अमूमन पैदल ही घर चला जाता था। इस दिन मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। किराए से 4-5 गुना ज्यादा पैसे लेकर वो मेरे साथ जाने पर आमादा हो गया। मुझे घर के सामने उतार कर उसने किराया वसूल किया और वापस मुड़ गया। उसके जाते ही मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर अब्बू जान को बेआराम करना मुझे मुनासिब न लगा कि दरवाज़ा खोलने उन्हें ही आना था। बैग कंधे से उतार कर मैंने नीचे ज़मीन पर रखा और उछल कर दीवार पर चढ़ गया। दूसरी जानिब आहिस्तगी से उतर कर मैंने दरवाज़ा खोल कर अपने दोनों बैग उठाए और दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सेन में अंधेरा था, अलबत्ता बरामदे के अंदर जलने वाले एनर्जी सेवर की रोशनी ने सेन में भी अच्छा खासा उजाला कर रखा था। अपने कमरे सामने पहुंचकर मैं रुका। दरवाजे की दर से झलकने वाली रोशनी ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि माहीन लाइट बुझाकर सोने की आदी थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही लगा था कि अचानक मेरे कानों में माहीन की हंसी गूंजी और फिर जवाबन एक मर्दाना आवाज ने मेरे कानों में जहर अंडेला। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। उस वक्त माहीन के कमरे में किसी गैर मर्द की मौजूदगी मेरा दिल नागवार अंदाज में धड़कने लगा।
करीब होकर मैंने दरवाजे से कान लगाए। मर्द कह रहा था, इतनी जल्दी तो मैं जाने वाला नहीं। जानू, तुम तो सीरियस ही नहीं होते। माहिन की जज्बात में डूबी आवाज़ सुनकर तो मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। मेरी प्यारी माही की सूरत ही ऐसी है कि सारी जिंदगी देखने से भी दिल न भरे। तो फिर कोई काम धंधा करो ना, ताकि मैं उस मुसीबत से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। काम धंधा भी कर लूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। उससे बात खत्म करते हुए जाने क्या हरकत की थी कि माहीन की तेज सिसकी उभरी और फिर किसी को थप्पड़ मारने जैसी आवाज उभरी। उसके साथ माहीन की आवाज आई, कितनी बार मना किया है कि शरारत न किया करो। वो कमीनगी से हंसा, तुम भी मुझे काम धंधे का ना कहा करो। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। तो क्या मुझे पाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? माहीन ने नाराजगी भरी आवाज़ में पूछा। वाह जी वाह, तुम्हें पाने के लिए अब मजदूरी शुरू कर दूं? उसने कहका लगाया और मैंने पहचान लिया वो उसका चच्चा ज़ात ताहिर था। जाने कितने अरसे से ये खेल खेला जा रहा था और जहां तक मेरा अंदाजा था वो अबूजान को नींद की गोलियां खिला देते थे। तो कोई नौकरी शुरू कर दो, माहीन ने मशवरा दिया। नौकरी वगैरह तो मुझसे नहीं होने वाली, अलबत्ता कोई कारोबार शुरू करने का इरादा है। तुम कुछ रकम का बंदोबस्त करो ना। मैं कहाँ से रकम का बंदोबस्त करूं? मुझे ज़ीशान इतने पैसे थोड़ी देता है कि उससे कोई कारोबार हो सके। इतने जेवरात जो पड़े हैं तुम्हारे पास, उनका क्या करोगी? ज़ीशान पूछेगा नहीं कि जेवरात कहाँ गए, कर लेना कोई बहाना, ताहिर ने कहा और उसके साथ मोहब्बत के इजहार की हैवानी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। अच्छा आप जाओ ना, मैं इस बारे कुछ सोचती हूँ। वो नीम रजामंदी से बोली, बस थोड़ी देर और। ताहिर की जज्बात से बोझल आवाज कोई और तकाजा कर रही थी। जानू तुम भी ना। माहीन की आवाज में भी खुद सुपुर्दगी का अंदिया था। इससे ज्यादा बकवास सुनने की मुझ में ताब नहीं थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुलता चला गया था।